Hello, good morning, students. How are you? We study uh, in last term of physics about motion. We study about motion. Okay, motion means movement and rest. We studied distance difference between the distance and displacement. Okay, now let us understand more about the displacement. we have we explained distance and displacement. For example, in this diagram, if an ant or a body start moving from here and travel on this path and reach at point B. Okay, uh, it traveled this distance. Okay, how much distance it traveled? Look here, total distance covered. What is this? Semi circumference of the circle. Okay, semi circumference of the circle, semi circumference pi r. Okay, if here is full circumference, then formula is 2 pi r. Semi circumference formula is pi r. Pi r equal to value of pi 22 upon 7. R, what is r? R is radius of this semicircular path. Okay, value of pi 22 upon 7 multiply 7. Okay, radius 7 cancel by 7. Our answer is 22 meter. Okay, so distance covered by the body is 22 meter. Okay, if we check the displacement of this object, displacement means in displacement we see only initial position of the body and final position of the body. Okay, so the displacement is the shortest distance between the इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट. ओके, चाहे वो किसी भी रास्ते से उसने अपनी ट्रेवल अपनी जर्नी की हो, लेकिन हम सिर्फ उसके इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को ही ऑब्जर्व करेंगे. तो द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट is the displacement covered by the body. Okay, so how much displacement uh, does it covered by? Equal to the diameter of the circle. Okay, radius of the circle is 7, diameter will be 14. Okay, so displacement is 14. Here we have find displacement. Okay, look carefully. Now another example is, if an object move from point A, position A, and travel on this circular path ऑफ रेडियस 7. ओके, यहाँ से स्टार्ट की उसने अपनी जर्नी और यहीं पर आके उसने अपनी जर्नी को स्टॉप कर दिया. ओके, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज लेंथ ऑफ दिस पाथ. यहाँ से पूरे यहाँ तक लेंथ ऑफ दिस पाथ. व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ? द शेप ऑफ द पाथ इज द सर्कुलर. ओके, तो वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, सो वी फाइंड द डिस्टेंस. ओके, क्योंकि इतनी ही डिस्टेंस कवर की उसने, तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल. ओके, सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर. वैल्यू रखी फॉर्मूले में 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आर इक्वल टू 7. ओके, 7 कैंसिल बाई 7, 22 मल्टीप्लाई 2, 22 2 ज़ा 44 मीटर. ओके, so total distance is 44 meter. If we observe about on only displacement, how much displacement is covered by it, कितना displacement उसने cover किया. So we observe only the initial point, initial position and the final position. What is the initial position of the body? This, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुई थी चलना, वो चलना स्टार्ट की उसने
इस पाथ पर, इस रास्ते पर वो चली और यहीं आकर रुक गई। ओके, यानी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एक ही है। जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होता है, कोइंसाइड करती, जहाँ से स्टार्ट हो और वहीं पर आकर रुक जाए, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। ओके, तो देखिए डिस्टेंस इज 44 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी? ज़ीरो, क्योंकि यहीं से चला था और यहीं आकर रुक गया, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। ओके, इस वीडियो को आप जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी रिपीट कर लेना, देख लेना दोबारा। ओके, लेट्स अनदर एग्जाम्पल। इफ this is your home and you are going to school from your home. The distance between your school and your home and your school is 6 kilometer. Okay, in the morning you are going to the school. Okay, अपने डिस्टेंस कवर की। यहाँ आपका फ्रेंड, आपने अपने फ्रेंड को पिक किया और स्कूल की तरफ चल दिए। ओके, आप स्कूल पहुंच गए। टेल मी द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू। आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? ओके, 6 किलोमीटर, क्योंकि 6 किलोमीटर ही डिस्टेंस है आपके होम से और आपके स्कूल की। द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल इज 6 किलोमीटर। ओके, तो आपने 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। तो इस कंडीशन में आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस 6 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इक्वल टू 6 किलोमीटर। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द होम एंड द स्कूल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फिर हम वहीं देखेंगे, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ओके, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज, देखिए इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 6। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट भी 6 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 6 किलोमीटर। ओके, क्योंकि इस कंडीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। जब भी हम किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, जब तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते रहेंगे तब तक हमारी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। रिमेंबर इट। ओके, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, we went to school. Okay, after over the school we returned from the school and drop our friend, अपने फ्रेंड को ड्रॉप किया, लेकिन हम अपने फ्रेंड के ही घर स्टे हो गए थोड़ी देर के लिए। हमने मान लीजिए होमवर्क किया उसके साथ। ओके, तो हम यहाँ इस पॉइंट पर पहुँच गए अपने फ्रेंड के घर। तो टेल मी अबाउट हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय यू। लुक, यहाँ से स्टार्ट किया अपने 6 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर की, फिर 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, तो कितना हो गया? 6 और 6 7 8 किलोमीटर। ओके, तो इस कंडीशन में आपने 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय यू? 8 किलोमीटर। ओके, सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए जब आप रिटर्न बैक कर रहे हैं अपने घर के लिए। टेल मी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन तो वहीं रहेगी, लेकिन नाउ योर फाइनल पोजीशन इज एट सी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी। ओके, तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 किलोमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। डिस्टेंस तो 8 किलोमीटर हमने कवर की, यहाँ से 6 गए और फिर 2 यहाँ तक। ओके, 6 to 8 यहाँ लिख लें, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस।
ओके, नाउ नेक्स्ट, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग अवर होमवर्क वी मूव टूवर्ड्स आवर होम एंड फाइनली वी कम बैक अवर होम. ओके, तो अब डिस्टेंस के बारे में ज़रा बताइए. डिस्टेंस आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 6 एंड 6 रिटर्न बैक में, तो कितनी हो गई टोटल डिस्टेंस इन रिटर्न बैक? इन रिटर्न बैक टू होम. ठीक है, वापस आने में टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 किलोमीटर. Tell me about the displacement. Look here. Initial position is this. Now your final position is also this. क्योंकि अब आप घर आ गए, आपकी फाइनल पोजीशन भी यही हो गई. टेल मी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. ओके, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0. ओके, हैव यू गॉट? नाउ let's towards we have studied about motion. Now we studied about uniform motion and non-uniform motion. What is uniform motion and non-uniform motion? Yes, uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion means suppose if you take a bike or car, this is a straight highway. Okay, you start your bike and move towards this direction. This is a straight highway. Okay, आपने यहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट की. अब बाइक स्टार्ट करेंगे तो हमारी उसी टाइम तो एकदम स्पीड बढ़ी नहीं जाएगी, स्पीड हमारी स्लो ही बढ़ेगी. मान लिया आपने बाइक स्टार्ट की, आपकी स्पीड यहाँ 10 हुई, यहाँ का 20, 30, 40, 50 हो गई, 60 हो गई, यहाँ का 80. ओके, अब आपने कहा 80 तो बहुत हो गई. ठीक है, बस इतनी ही रहने दें अब स्पीड को हम अपनी. अब हम ना तो हम अपनी स्पीड कम करें और ना ही ज़्यादा करें. ओके, तो आपने क्या किया, ना तो आप एक्सेलरेटर को इंक्रीज़ कर रहे हैं और ना ही एक्सेलरेटर को डिक्रीज़ कर रहे हैं. ओके, तो आप मूव करे चल रहे हैं लेकिन आपकी स्पीड 80 ही बनी हुई है. समझ रहे हैं ना? यानी आपकी स्पीड यहाँ पर सेम है, ना तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं ना ही कम कर रहे हैं. ओके, यहाँ तक आपकी स्पीड सेम रही. अब आप अपने डेस्टिनेशन को पहुँचने वाले हैं, यानी जहाँ पर आपको जाना है, ये वो पॉइंट है जहाँ आपको जाना है. मान लिया आपको यहाँ पहुँचना है. ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अब अपनी स्पीड को स्लो करेंगे. ओके, तो स्लोली आप ब्रेक अप्लाई करेंगे और आपकी स्पीड 30, 20, 10 एंड देन यू विल बी स्टॉप. ओके, तो यहाँ आपने क्या देखा, यू ऑब्जर्व हियर कि यहाँ आपकी बाइक की स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. ओके, इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि आपकी जो स्पीड है बाइक की वो सेम नहीं है. ओके, सेम नहीं है, इसका मीन्स वो यूनिफॉर्म नहीं है. ओके, इट मीन्स वो नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉन यूनिफॉर्म. ओके, इतने पार्ट की नॉन यूनिफॉर्म. क्यों है नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही. ओके, सेम नहीं है, सेम होती तो यूनिफॉर्म होती मोशन आपकी. तो आप किस तरह की मोशन कर रहे हैं, आप यहाँ से यहाँ तक नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं. ओके, यहाँ देखिए आपकी स्पीड 80, अब भी 80 है, यहाँ तक अब भी 80 है. ओके, तो यहाँ पर आपकी स्पीड बिल्कुल सेम है, यानी आप यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं. आप किस टाइप की मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में. ओके, यानी एक सेम स्पीड से, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. ओके, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन.
non-uniform motion in this part. Okay, in this part you have in uniform motion. Now you watch your destination and you डिक्रीज योर स्पीड ऑफ योर बाइक। आपने अपनी बाइक की स्पीड डिक्रीज करना स्टार्ट कर दी। ओके, अब आप किस तरह की मोशन में हो? क्या आपकी स्पीड सेम है? नहीं, अब आपकी स्पीड स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रही है। आपकी स्पीड स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि अब आप कैसी हो? यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ओके, वेरी गुड, आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है, क्योंकि अब आपकी स्पीड कम हो रही है, सेम तो नहीं है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने दो जगह देखा, एक तो जब हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है तब भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हैं, और जब हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है तब भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हैं। एंड व्हेन आवर स्पीड इज सेम देन वी आर इन यूनिफॉर्म मोशन। एक ही स्पीड से चलते जा रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा कब होता है, कहाँ कहाँ होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्राउडेड सिटी में, भीड़ भाड़ में बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो उस टाइम आपकी मोशन कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि कभी तो आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, आपको स्पेस मिलेगा, आप क्या कहते हैं, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही आपको स्पेस नहीं मिलेगा, क्राउडेड भीड़ आ जाएगी, तो आप अपनी स्पीड को डिक्रीज कर देंगे, स्लो कर देंगे अपनी स्पीड को। ओके, यूनिफॉर्म मोशन कब हो सकती है आपकी? यूनिफॉर्म मोशन जब हम एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही स्पीड से चलते हों। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लॉक की सुई होती है, क्लॉक का हैंड, आर वाला हैंड, वो सेम स्पीड से ऐसे ही चलता रहता है। ओके, सेम स्पीड से ऐसे ही चलता रहता है। हमें फील तो नहीं होता है, लेकिन वो सेम स्पीड से क्लॉक का आर वाला हैंड, घंटे वाली सुई सेम स्पीड से चलती रहती है। आवर अर्थ मूविंग अराउंड द सन, वो भी एक सेम स्पीड से सन के अराउंड मूव करती रहती है। ओके, सो लेट अस डिफाइन द यूनिफॉर्म मोशन। A body is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time. Okay, equal distance in equal interval of time. देखिए, जैसे यहाँ पर हर उसमें इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, हैव यू गॉट? Remember the definition. A body is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time. नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट अपोजिट टू इट, सिर्फ हम यहाँ पर लिख देंगे अनइक्वल डिस्टेंस। यहाँ इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी इक्वल टाइम इंटरवल में, एंड यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस, यानी यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अनइक्वल एंड इक्वल, बस इतना ही डिफरेंस है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, एग्जाम्पल ये हो जाएंगे, द आर हैंड ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन को हो जाएंगे द आर हैंड ऑफ द क्लॉक, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, ये यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, मोशन ऑफ कार इन अ क्राउडेड सिटी, मोशन ऑफ रेन ड्रॉप। हाँ, रेन ड्रॉप की मोशन यानी बारिश की बूंदों की भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। कैसे होगी? कि जब भी बारिश की बूंदें यानी रेन ड्रॉप ऊपर से बहुत हाईएस्ट लेवल से आती हैं, तो बहुत ऊंचाई से आती हैं वो, तो जैसे ही वो ऊपर से आएंगी, जैसे ही वो नीचे अर्थ की तरफ मूव करती रहती हैं, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ओके, जैसे ही वो इस अर्थ की टुवर्ड्स द अर्थ मूव करेंगी, स्पीड विल बी इंक्रीज्ड। ओके, क्यों होती है इसकी स्पीड इंक्रीज? वो ग्रेविटेशन का मसला होता है, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशन होता है और अर्थ रेन ड्रॉप को अपने टुवर्ड्स इट्स, यानी अपनी ओर वो स्पीड को उसकी तेज़ कर देती है और ज़्यादा स्पीड से उसको खींचती रहती है। ये हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में इन डिटेल, क्या होता है ग्रेविटेशन। ओके, इसी तरह से कि फॉर एग्जांपल और इसका एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई स्टोन है, आपने उस स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। ओके,
आपने उस स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो वो स्टोन स्लोली स्लोली उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ओके, एक सर्टेन हाइट पर जाकर वो स्टोन कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, बहुत कम सेकंड के भी कुछ पार्ट के लिए रुक जाएगा और फिर आपकी तरफ फिर वापस आ जाएगा। ऐसे होता है ना। तो इसका मीन्स हो गया कि जब आपने उस स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। ओके, और जब वो ऊपर से वापसी आया आपकी तरफ तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। तो इसका ग्राफ कैसे हो सकता है, हम यहाँ पर इसकी ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही थी तो यहाँ पर ग्राफ हो सकता है जस्ट लाइक इट। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम, वाई एक्सिस पर लेते हैं हम डिस्टेंस। ओके, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। यहाँ देखिए कि स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो हम इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे कि स्पीड इंक्रीज हो रही, इस तरह से बनेगा डायग्राम। ये आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है ना, इंक्रीज हो रही है। ओके, डिक्रीज का डायग्राम कैसे बनेगा, जब आपकी स्पीड डिक्रीज होगी, यह डिक्रीज का डायग्राम हो जाएगा इस तरह से। इस कंडीशन में आपकी स्पीड डिक्रीज होगी। ये टाइम एक्सिस की तरफ डायग्राम है हमारा। ओके, ध्यान रखना, इसको भी हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको भी हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का डायग्राम कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन का डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन होती है। यूनिफॉर्म का डायग्राम एक स्ट्रेट लाइन। ओके, एक्स वाई, यहाँ एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई पर स्पीड, और यूनिफॉर्म का डायग्राम जस्ट लाइक इट। ओके, स्ट्रेट लाइन, इसको आपको ड्रॉ करना है बड़ा कर कर। नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये भी, नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये भी, और यूनिफॉर्म के लिए ये भी। ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर लेना, यहाँ स्पेस छोड़ा, यहाँ आप ड्रॉ कर लेना। ओके, नेक्स्ट स्पीड। व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होती है। स्पीड इस तरह से समझते हैं स्पीड को, मान लीजिए स्पीड formula, you have studied formula in lower classes. What is the formula of speed? Speed equal to distance upon time. You studied in math and science also. Speed equal to distance upon time. Okay, मान लीजिए आपने अपनी बाइक या कार निकाली और आपने मान लो आप जर्नी पर चले गए 1 आवर के लिए। ओके, आपने अपने घर से कार या बाइक निकाली और आप जर्नी पर चले गए और आपने 1 आवर बाद, आफ्टर 1 आवर यू लुक योर ओडोमीटर। व्हाट इज ओडोमीटर? ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर इन आवर बाइक और कार्स। ओडोमीटर record our distance, how much distance we covered. Okay, and speedometer record our speed of the bike. Remember it. Okay, तो जब हमने उसका ओडोमीटर देखा तो हमने देखा कि हम 60 किलोमीटर डिस्टेंस हमने कवर कर ली। ओके, हमने कितने टाइम बाद देखा, 1 आवर बाद। ओके, 1 आवर बाद देखा 60 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो इसका मीन्स हमारी स्पीड कितनी हो गई, हमारी स्पीड हो गई 1, डिनोमीटर में 1 है। ओके, 1 तो लिखो या नहीं लिखो डिनोमीटर में, तो हमारी स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर।
ओके, तो स्पीड को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल या कवर्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम यानी 1 आवर में भी कह सकते हैं, 1 मिनट में भी कह सकते हैं, एंड 1 सेकेंड में भी कह सकते हैं। ओके, डेफिनेशन लिख देते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस, ओके, स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट या ट्रेवल बाय इट इन पर यूनिट टाइम। ओके, अभी और एक्सप्लेन करते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस traveled by it per unit time, per यूनिट टाइम। ओके, नोट कर लेना इसे। पर यूनिट टाइम का मीन 1 आवर भी कह सकते हैं, 1 मिनट भी कह सकते हैं, 1 सेकेंड भी कह सकते हैं। और स्पीड को और समझ सकते हैं। मान लीजिए कि सिमिलर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी बाइक निकाली और आप फिर से लॉन्ग ड्राइव को चले गए। ओके, आफ्टर 2 आवर्स आपने जब ओडोमीटर देखा तो वो डिस्टेंस शो कर रहा है 90 किलोमीटर। ओके, 90 किलोमीटर शो कर रहा है। अगर अब हम कहें कि आपकी स्पीड कितनी है, तो फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर v से, स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे s से, एंड टाइम को t से। ओके, तो यहाँ स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस आपने कितनी कवर की? 90 किलोमीटर। ओके, टाइम कितना? 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए आप निकले थे, 2 आवर्स। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? सॉल्व करते हैं। 2 1 = 2, 2 4 = 8, 1 रहेगा 0, 10, 2 5 = 10। ओके, 45 किलोमीटर पर आवर, ये ज़रूर लिखेंगे। इट इज़ द यूनिट किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट ऑफ स्पीड। ओके, स्पीड सबकी डिफरेंट हो सकती है। अगर कोई बॉडी है स्लो मूव कर रही है, उसकी मोशन स्लो हो रही है, तो उसकी स्पीड कम। अगर इफ़ अनदर बॉडी इज मूविंग फास्ट, तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे ये एथलीट होते हैं, एथलीट रनर करते हैं, वेरी फास्ट रनिंग करते हैं, लेकिन कितनी भी फास्ट करें हैं तो एक पर्सन ही ना। इनकी स्पीड होती है 36 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच? 36 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में, इसका मीन्स हो गया कि 1 आवर में 36 किलोमीटर कवर करते हैं ये। ओके, हियर इज अ चीता। चीते की स्पीड 97 किलोमीटर पर आवर। ओके, बिकॉज ही मूव्स वेरी फास्ट फ्रॉम these, and the speed of military jet is 1800 kilometer, 1800 kilometer, because it moves faster than cheetah, and the speed of the rocket is faster than the military jet. Okay, इसी तरह से स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ रॉकेट। सैटेलाइट और ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। और आवर अर्थ, स्पीड ऑफ आवर अर्थ अराउंड द सन, वो भी बहुत स्पीड से मूव करती है। हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर नहीं, पर सेकेंड में मूव करते, पर सेकेंड उसकी स्पीड है, यानी 1 सेकेंड में वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस सन के अराउंड कवर कर लेती है। इट इज़ अ टू मच स्पीड ऑफ द अर्थ। Okay, this is the speed
स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट पर यूनिट टाइम। ओके, यानी पर यूनिट टाइम में जितनी भी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो उसकी स्पीड हो जाएगी। सिमिलर स्पीड में भी ऐसे ही होता है। स्पीड में भी स्पीड जो हम डिफाइन करते हैं स्पीड को, वो डिस्टेंस से डिफाइन करते हैं। ओके, तो जो डिस्टेंस की करेक्टरिस्टिक्स होंगी वही स्पीड की होंगी। यूनिट इसका लिख लें, यूनिट ऑफ स्पीड। ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले को लिख लें, v इक्वल टू एस अपॉन टी। ओके, ये फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या होते हैं कि अगर कोई भी हम क्वांटिटी फिजिक्स में या मैथ्स में अगर कोई भी हम क्वांटिटी देखना चाहें कि मेज़र करना चाहें कि ये क्वांटिटी हमारे पास जो भी है कितनी है, तो उसके लिए हम कोई यूनिट मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप राइस परचेज़ कर रहे हो, तो राइस परचेज़ करोगे तो आप किलोग्राम में परचेज़ करोगे। ओके, मिल्क परचेज़ करो तो लीटर में परचेज़ करोगे, या आप कोई प्लॉट ख़रीद रहे हो तो आप उसका स्क्वायर मीटर में ख़रीदोगे। ओके, तो दीज आर द यूनिट। वो एप्पल जो ख़रीद रहे हैं हम उसका उसमें मास होता है, राइस खरीदो उसमें मास होता है, उसका यूनिट किलोग्राम। ओके, तो ये यूनिट होते हैं। इसी तरह से स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। हम यूनिट को यहाँ से बनाते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर, मीटर भी हो सकता है। ओके, डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर, टाइम का यूनिट आर, टाइम को सेकंड में, मिनट में, आर में मेज़र करते हैं ना। ओके, सो इस यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या बन जाएगा? किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। ओके, किलोमीटर पर आवर। अगर आपकी डिस्टेंस मीटर में होगी और टाइम आप मेज़र कर रहे हैं सेकंड में, तो बन जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इट इज़ द डिवाइड ऑफ साइन। ठीक है, इसको पर बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। स्पीड जिस तरह से डिस्टेंस में हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड बताई थी, इसी तरह से स्पीड में भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्पीड की करेक्टरिस्टिक्स जस्ट सिमिलर टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस। ओके, लुक, it is a scalar quantity. Speed is also a scalar quantity. It has only magnitude. Okay, speed is also have only magnitude. It never be zero or negative. इसी तरह से स्पीड भी ना तो ज़ीरो हो सकती ना निगेटिव हो सकती। ओके, तो आप सेम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट हैज़ अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ it has a scalar quantity. It has a scalar quantity. Second characteristics, it has only magnitude. Magnitude यानी इसकी सिर्फ वैल्यू होती है, जैसे 45, जैसे 60 किलोमीटर। ओके, किस डायरेक्शन में है ये कुछ नहीं, 60 किलोमीटर, या अभी हमने फाइंड करी थी 40 किलोमीटर। तो दिस नंबर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। नंबर्स को मैग्नीट्यूड बोलते हैं क्योंकि यहाँ डायरेक्शन शो नहीं हो रही है कि हम किस डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, इट नेवर बी ज़ीरो और निगेटिव। ना तो ये ज़ीरो होती है और ना निगेटिव होती है। सेकंड थी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही डिफाइन हो जाएगी, बस यहाँ पर हम डायरेक्शन का नाम और लेंगे। ओके, डायरेक्शन का नाम। How to define it? It defined velocity of a body. Velocity of a body is the distance travel by it per unit time in a given direction. Okay, सारी की सारी डेफिनेशन यहीं आ जाएगी, बस हम यहाँ लिख देंगे in a given direction. Okay, velocity, स्पीड की प्लेस पर velocity of a body is the distance travel by it per unit time in a given direction. Okay,
velocity of a body is the distance traveled by it per unit time, ओके, इन गिवन डायरेक्शन। इतना चेंज है, इन गिवन डायरेक्शन, यानी हम मूव जो कर रहे हैं, अपनी मोशन जो कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ओके, इन गिवन डायरेक्शन। ये सारा वर्क कंप्लीट करना है। आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये भी आपको सब अपनी कॉपी पर करना है, ओके, सब हेडिंग डालकर, और उसके बाद आपको ये भी करना है, ओके। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू, बस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। यूनिट भी यही रहेगा, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ओके। फॉर्मूला भी इसका यही हो जाएगा सेम। यहाँ डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, डायरेक्शन वेक्टर से दिखाते हैं, अभी आपके सिलेबस में इतना नहीं, आप बस यही समझें, ओके। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ दिखा देंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे ही दिखा दिए, शो कर दीजिए अपॉन टी, ओके। अब इसके डिफरेंस अगर हम लिखें तो इसके डिफरेंस में हम फॉलो करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम फॉलो करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ओके। तो जैसे यहाँ पर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ लिख देंगे इसके सेकंड पॉइंट में, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन यानी वैल्यू भी होती है, और किस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं वो भी होती है, ओके। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। क्यों होती है, कब होती है, इसको आगे डिस्कस करेंगे, ओके। इसको आपको करना है, ये होमवर्क कंप्लीट। थैंक यू, गुड बाय।